Hello, aspirants, and welcome back to our channel. Let's have the Hindu analysis dated 24th November 2021. So, let's start today's discussion. The first article states that India US commits to linking economies across sectors. India's grapes, US cherries could be early winners at trade forum. So basically it is speaking of India US trade policy forum which both the countries are trying to revive. So what first we'll see the article and then I'll let you know about the trade forum between India and US. So, with the first thing is bolstering the ties, the market access, the action plans, the hope for IT workers, and post COVID plans. All are this of the initiatives that are taken by both of the countries to make the bilateral ties more stronger. The US and India committed to integrating their economies across the sectors to harness the untapped potentials of bilateral relationships at the ट्रेड पॉलिसी फोरम ट्रेड पॉलिसी फोरम अगर एग्जैक्टली मैं बताऊँ तो दोनों कंट्रीज़ के बीच का एक टाई होता है जिसमें दे गिव अ प्रॉमिस टू बोथ द कंट्रीज दैट दे विल हैव अ ट्रेड टू द मैक्सिमम एडवांटेजेस ऑफ बोथ द कंट्रीज़ लास्ट ईयर आई थिंक सो पैंडमिक के सिचुएशन की वजह से वो चीज़ कट आउट कर दिया था बट यूएस एंड इंडिया बोथ आर ट्राइंग टू रिवाइव द सिचुएशन करेंटली. The two sides decided to activate the working groups of Trade Policy Forum on agriculture, non-agriculture goods, service, investment, intellectual properties to meet frequently and address the issues of mutual concerns on an beneficial manner so that both the countries can be benefited on all these issues. The idea is to deliver tangible benefits to the farmers and business of both the countries by resolving its issues. Secondly, the thing states is about the mutual market access. Mutual market access simply means अगर दो countries हैं दोनों के market accessibility जो है ऐसा नहीं है कि हम restriction रखेंगे. For example अगर मैं बात करूँ India and China, ठीक है. सो चाइना या फिर इंडिया ने मार्केट एक्सेसिबिलिटी चाइना को उतनी नहीं दी है. चाइना का सभी प्रोडक्ट्स जो पहले हमारे मार्केट में आता था अब वो नहीं है. मैनी ऑफ द थिंग्स आर बैंड, मैनी ऑफ द थिंग्स इंडिया आर मेकिंग इंडिजीनियसली और वी आर टेकिंग इट फ्रॉम अनदर कंट्री. वेर एज व्हेन इट कम्स टू यूएस एंड इंडिया बोथ द कंट्री हैज़ द एक्सेसिबिलिटी. मोर ऑफ द गुड्स दोनों कंट्रीज़ के जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होते हैं दोनों कंट्रीज़ के बाय अ म्यूचुअल कंसर्न बिटवीन द कंट्रीज़. So, especially the forum has decided to forge an agreement to facilitate the US market access for mangoes, grapes, and pomegranates from India and reciprocate with similar access of Indian market with cherries, pork products from US. So ये जस्ट एन एग्जाम्पल दिया है दोनों कंट्रीज़ की एक्सेसिबिलिटीज़ के बारे में. सेकेंड थिंग दिया है दैट इज़ द रिस्टोर GSP benefits. GSP is the generalized system of preference. कुछ दिन पहले हमने देखा था कि यूएस ने इंडिया को जीएसपी के लिस्ट से हटा दिया गया था. जीएसपी के लिस्ट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया और यूएस का ट्रेड होता है विथ एप्पल्स हम कंसिडर कर लेते हैं, तो अगर इंडिया जो है जीएसपी के लिस्ट में है तो इंडिया को कुछ टैरिफ रेट नहीं भरना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ रेट नहीं भरना पड़ेगा और उनको एट अ वेरी लेसर रेट वो लोग ट्रेड कर सकते हैं. वही अगर जीएसपी से हटा दिया तो उसको सारे टैरिफ रेट्स और सब कुछ भरना पड़ेगा. उसी के रिलेटेड बात किया गया है. रिवाइविंग ऑफ इट मीन्स कि जीएसपी के लिस्ट में वापस से इंडिया को डालने की कोशिश करेंगे. रिस्टोरिंग द बेनिफिट्स टू इंडिया. So the India has sought the restoration of GSP, the generalized system of preference benefit by US, and said this would help the industries from both the sides internationally. The US noted it for the sustainable consideration as the official said. So it is a good symbol from India's concern also because it will indirectly or directly help the GDP of India or the economy of India. अब ट्रेड के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं जो यूएस या फिर इंडो यूएस ट्रेड रिवाइवल है. यूएस इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज विच इंडिया हैज़ अ ट्रेड सरप्लस जिसके साथ,
ठीक है, वन ऑफ द कंट्रीज़ है जिसका ट्रेड सरप्लस है। और अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो इंडिया ग्लोबली 6 लार्जेस्ट सप्लायर होता है सर्विस इम्पोर्टर्स को यूएस को लेकर। सो इंडिया हैज़ अ वेरी लार्ज मार्केट एंड इकोनॉमी एंड इट प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द असेंशियल मार्केट्स और द commodities to US. During the Donald Trump administration, the two side came to closing the agreement. अब यहाँ पे जो एग्रीमेंट है दैट इज़ द जीएसपी के बारे में बात किया गया है, ठीक है, जिसको जॉय बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बात कर रहे हैं कि दे विल ट्राई टू रिवाइव इट अगेन. So if they will revive the GSP, it will be a win-win situation for both the countries. And when it comes to trade policy forum, the importance of trade policy forum is that though it is likely a breakthrough for both the country, but it gives the opportunities to the countries to forge their trade relationship or bilateral relationship. When it comes to US is one of the most important partners of the we can say trading partners of India. So it is a win-win situation if US will have the deal, whereas एक challenge बन जाएगा चाइना के लिए by seeing the increasing relation of US and India or seeing the domination of US globally. So that is all about the currently reviving of sectors or the policy which the article is stating about. Now we'll move to the next article. The next article states US warship transit Taiwan's straits after Biden-Xi summit. So ये हुआ क्या है, कुछ पिछले हफ्ते हमने देखा था कि यूएस और चाइना के मीट्स हुए थे वर्चुअली और वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, जिस पे उन्होंने डिसाइड किया था कि हमारा जो इंडो पैसिफिक रीजन में एग्जैक्ट कंट्रोल नहीं है और अगर किसी कंट्री को जाना है तो दे कैन पास थ्रू इट. सेकेंडली जिस चीज़ पे बात की गई थी दैट वाज ताइवान, जिसका रेपोकशन रिसेंटली दिखा कि जब यूएस का वन ऑफ द गाइडेड मिसाइल ताइवान के स्ट्रेट से पास किया, चाइना ने उसको नहीं रोका और चाइना ने उसको पास करने दिया. वेरस येस्टरडे का जो आसियान मीट था उसमें हमने क्या देखा था कि फिलीपींस के जो एक शिप थी उसको टर्न बैक कर दिया वहाँ से कि यू कांट पास थ्रू इट, उन पर अटैक किया गया था. तो यहाँ पर यूएस के साथ कुछ अलग रिलेशन चल रहा है चाइना का, वेरस इट कंपेयर्स टू द आसियन कंट्री ऑफ फिलीपींस. So the article, we'll see the article. What does this article means? Article में सबसे पहले चीज़ बताया गया है the voyage demonstrate US commitments to free and open Indo-Pacific trades. क्यों? क्योंकि उनको पास करने दिया वहाँ से. The US warship sailed through the strait separating Taiwan and China on Tuesday, the Navy said. The first such passage since the leaders have rival superpowers held in the video summit. वीडियो समिट के बाद ये सबसे पहला ऐसा एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन दिख रहा है उनके ट्रेड रिलेशंस का या फिर कंट्री के रिलेशंस का. द पैसेज थ्रू द स्ट्रेट Taiwan Strait by the guided missile US Miles was a routine transit. The voyage 11th declared freedom of navigation exercise of the year for the free and open Indo-Pacific relations. So अगर उन्होंने ये चीज़ क्लियरली बोला कि अगर यूएस को इंडो पैसिफिक रीजन से पास करना है या साउथ चाइना सी कंसिडर कर लो तो चाइना उनको नहीं रोकेगा उस चीज़ को लेकर. The latest transit came after US President Joe Biden and China's Xi Jinping traded a strong warning on the future Taiwan as a virtual summit. So the Chinese state media reported after the summit that Mr. Xi cautioned Mr. Biden the encouraging Taiwanese independence would be playing with fiber. तो दूसरी तरफ से ये भी बोला है कि ताइवान में ज़्यादा इंटरवेंशन आपके लिए अच्छा नहीं होगा या फिर इट विल एक्चुअली हैम्पर द रिलेशनशिप. So US warship periodically conducted free navigation sailing through the straits और recently भी वो चीज़ किया गया था जो कि चाइना ने अलाउ किया. US playing with fire जिस चीज़ के बारे में बात किया है. China's foreign minister Mr. Zhao Linjian slammed the latest transit as a deliberate attempt to disrupt the undermine
रीजनल पीस. सो यूएस के फॉरेन मिनिस्टर का ये भी बोलना है कि अगर आप ऐसा कुछ एक्शन ले रहे हो, दैट मीन्स यू आर एक्चुअली trying to destruct or trying to disrupt the peaceful situation or the environment that is going on. दूसरी जगह ये भी बोला जा रहा है कि we will not affect. तो exactly ये बोलना मुश्किल है कि what are they trying to say. Will they allow the countries to pass through the strait, or it's just for a temporary basis. Let's see आगे इसके related और क्या चीज़ें आती है. Next is we can consider the historical, we can say, discovery that has been made. Glacier changed track 20,000 years ago. So it is speaking of one of the mountain, Glacier Mountain, which actually changed its path because of the tectonic movement, and currently it is in the UK, or sorry, Uttarakhand. Scientists say that it fused into the adjacent glacier in the present day Pittora Ghar. सो जो एक्चुअल ग्लेशियर माउंटेन था वो टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से उसका जो एडजेसेंट माउंटेन था या एडजेसेंट ग्लेशियर था उसमें मर्ज अप हो गया. और करेंटली ये जो है आफ्टर द स्टडी पता चला कि उत्तराखंड में सिचुएटेड है रिसेंटली. So, nearly 20,000 years ago, a 5 kilometer long Himalayan glacier apparently changed the course and over the time fused into the adjacent glacier in the present day Pithoragarh, Uttarakhand. This is the first time, says the scientist who has described the findings of the peer received journal this week, that such a turn in the glacier's course has been recorded in the Himachal. Change in the climatic along the tectonic movements probably caused this happen. So उसका one only reason बोला जा रहा है, that is the tectonic plates. The movement of tectonic plates is the reason कि वो उसके adjacent glacier में merged up हो गया था. The glacier, which does not have a name and lies in extremely inaccessible region, was large enough that it formed its own valley. 5 kilometer long. Just consider कितना बड़ा वो वैली का बन सकता है. एंड वही चीज़ साइंटिस्ट का बोलना है कि इट वॉज सो लॉन्ग कि वो खुद की प्रॉपर वैली बना चुका था विद एन एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल दी डेब्रीज अराउंड इट. Secondly, the study adds to the evidence of the inherent instability of Himalayan region among the youngest mountain. हिमालय रीजन के बारे में हमें भी पता है कि अगर हम वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड में हिमालय इज़ द यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन. सो ये सब चीज़ें हमारी यंगेस्ट माउंटेन फोल्ड्स में भी हो सकती है. दिस इज़ द न्यू डिस्कवरी जो साइंटिस्ट ने बताया है. So the scientists add to the evidence of the inherent instability of Himalayan region among the youngest mountain ranges in the world, due to which the underlying tectonic plates that support it not stable and frequently triggers the earthquake एंड लैंड स्लाइड. सो इट इज़ समहाउ रीज़न उन्होंने बोला कि इनकी मूवमेंट इतनी स्टेबल नहीं है बीइंग अ यंग माउंटेन, जिसके वजह से हमने अभी करंटली अगर हम बात करें तो हर कुछ दिनों में हम लैंड स्लाइड्स के बारे में न्यूज़ सुनते हैं. बीइंग द यंगेस्ट माउंटेन इनके अंदर मूवमेंट होना इज़ वेरी रीजनेबल. सो इट इज़ जस्टिफिएबल अगर ऐसे कुछ चीज़ें हो रही हैं तो. The event had similarities in the FEBS disaster ऋषिकेश वैली उत्तराखंड जो कि 2013-14 के टाइम पे हुआ था. तो सेम चीज़ उन्होंने बोला है कि ये जो मूवमेंट या जो मर्ज हुआ था इसको आप 2013 के जो मूवमेंट से आप कनेक्ट कर सकते हो कि सेम टाइप ऑफ उस टाइम पे भी हुआ था जिसकी वजह से ये मर्ज्ड अप चीज़ की गई है. So this event that we have described is a large event. However, the Himalayan region is an ecological fragile and prone to events. हमने देखा है क्योंकि हर कुछ दिनों में हम लैंडस्लाइड्स के बारे में सुनते हैं बिकॉज टेक्टोनिक मूवमेंट्स इतने फास्ट या फिर उनकी मूवमेंट इज़ वेरी ईजी. सो दैट इज़ वाई ये आर्टिकल रिसेंटली आया है. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला आर्टिकल हमारे एक स्कीम के बारे में बात करता है, दैट इज़ दी भारत गौरव स्कीम आइज दी रेलवे टूरिज्म. सो इंडियन रेलवे मिनिस्ट्री ने एक स्कीम लाया है बाय द नेम ऑफ भारत गौरव जो कि रेलवे टूरिज्म को प्रमोट करता है. पहले आर्टिकल को देखते हैं, देन विल लेट यू नो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, द इनिशिएटिव्स दैट आर टेकन अंडर द स्कीम. Theme based trains on annual. The TAP
To tap the huge To tap the huge potentials of the tourism, the railway on Tuesday announced the Bharat Gaurav scheme, under which the theme-based tourism circuit trains on the lines of Ramayan Express and can run either by private or state-owned operators. Till now, the railway has passenger segments and goods segments. Now, we will have the third segment for tourism. तो बेसिकली टूरिज्म को लेकर प्रॉपर ट्रेन्स अवेल होंगे जो सिर्फ टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से आप लोग को उस जगह की पूरी एक्सप्लोजर या फिर एक एन्जॉयमेंट देगा. सो द मिनिस्ट्री सेड दिस विल नॉट be the regular train that we run as per the timetable, but will be more than of the lines of the Ramayan Express. Just like normal express trains जो होते हैं पर्टिकुलर टाइम से टाइम तक, ये वाले ट्रेन वैसी फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करेंगे, बट या आपके एक्सप्लोरेशन और टूरिज्म या एंटरटेनमेंट को लेके सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी अंडर IRCTC. So, service providers who can be in individual company, society, trust, joint ventures will be free to decide the themes and circuits such as Guru Kripa trains for covering the important place of Sikh culture. So, ऐसे proper theme based trains चलेंगे जो कि आपको उस कल्चर के बारे में प्रॉपर नॉलेज या उस चीज़ के बारे में प्रॉपर डेटा या फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे. सो विथ enjoyment you will also know more about that culture. So Indian Railway will be launching a completely new segment, Bharat Gaurav train, to boost the tourism across India. Union Rail Minister Ashwini Vaishnav said that this is not a regular train service. ये ट्रेन जो है allocated, ऐसा बोला कि इसके अंडर 180 ट्रेन allocated किए जाएंगे with 3033 कोचेस. ठीक है, इन टोटल, जो कि अलग अलग थीम बेस पे आपको घुमाएगा. और इसको न्यू सेगमेंट इसके लिए बोला जा रहा है बिकॉज इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि टूरिज्म को एक्सपोर्ट करना, टूरिज्म को बूस्ट करना, ना कि जस्ट फॉर दी क्लोजर और कंप्लीशन ऑफ अ जर्नी, बट टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ये सेगमेंट प्रोवाइड किया गया है. सो ये प्राइवेट सेक्टर और IRCTC दोनों रन करेगा. दूसरी चीज़, इसके ऑपरेटर्स कोई भी हो सकते हैं, एक इंडिविजुअल, एक जॉइंट वेंचर जो मैंने जैसे आपको बताया, और रेट्स जो है इस ट्रेन के वो जो टूर ऑपरेटर्स हैं उन पर डिसाइडेड रहेगा, उनके हिसाब से डिसाइड होगा. सो इट इज़ नॉट फिक्स. एंड समहाउ ये जो टूरिज्म है इट विल शो द कल्चर ऑफ इंडिया, द डाइवर्सिटी, द वेराइटी ऑफ इंडिया. सो दैट इज़ द थिंग यू शुड नो विद भारत गौरव. अगर प्रीलिम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आया, या फिर इंडियन टूरिज्म या फिर एक एनकरेजमेंट टू इंडियन टूरिज्म के रिलेटेड आप भारत गौरव के बारे में भी लिख सकते हैं. Now we'll move to the next article. DAC approves AK-203 deals with रशिया. इसको लेकर कुछ दिन पहले भी हमने देखा था कि रशिया और DAC जो हमारा काउंसिल है, उन दोनों ने मिलकर प्रॉपर AK-203 जो इक्विपमेंट्स है उसका डील साइन किया है, जिसका जो प्रॉपर ऑर्डिनेंस है वो यूपी में बनेगा, प्रॉपर पार्ट्स उसके यूपी में बनेंगे. उसी के रिलेटेड ये आर्टिकल आया है. The Defense Acquisition Council (DAC), which met with the chairman of Defense Minister Mr. Rajnath Singh, approved the long pending deal of 6.71 lakhs AK-203 assault rifles in India. ठीक है, जो कि रशिया के प्रेसिडेंट मिस्टर पुतिन की विजिट से पहले डिसाइड किया गया है कि उनका मैकेनिज्म स्टार्ट किया गया जाएगा, बिकॉज 6 दिसंबर को 2+2 मीटिंग या डायलॉग होने वाली है इंडिया और रशिया के बीच में. दोनों ही कंट्रीज़ ने डिसाइड किया था ये 2019 फेब में कि ऐसे कुछ प्रोक्योरमेंट किए जाएंगे जिसका प्रॉपर मैकेनिज्म जो है वो यूपी कोरवा फैक्ट्री में बनाया जाएगा. ठीक है, उसकी जो ऑर्डिनेंस है वो इंडियन साइड और रशियन साइड दोनों के तरफ से की जाएगी. और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ ऑलरेडी फ्लोटेड अ रिक्वेस्ट फॉर द प्रपोजल ऑफ दिस राइफल्स फाइनल डील, जो कि अब कंप्लीट हुआ है. उसी के साथ दूसरी एक छोटी चीज़ बताई गई है, दैट इज़ दी
एयरफोर्स सैटेलाइट के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सो द डीएसी अप्रूव्ड अ प्रपोजल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ दिस कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इसी के साथ एयरफोर्स सैटेलाइट का प्रोक्योरमेंट भी बोला गया है, जिसका वर्थ 2236 करोड़ का बताया जा रहा है। एंड इंडक्शन ऑफ दिस जी सैट 7C ये वो सैटेलाइट का नाम है जिसके प्रोक्यूरमेंट के बारे में बात किया जा रहा है। और ये इसके लिए बोला गया कि अगर हम ये लाएंगे तो इट विल एनहांस दी आर्म फोर्स एंड कम्युनिकेशन बियॉन्ड दी साइट्स, सो इट विल बी गुड फॉर इंडियन डिफेंस सर्विसेज। एंड जिसके तरीके से वी विल बी अपडेटेड इफ अगर फर्दर कुछ रेपोकॉशंस हो रहे हैं उसको लेकर। सो आई होप सो आज का आर्टिकल आपको क्लियरली समझा होगा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।